Yes, hello everyone, the CUET aspirants. How are you all? So today I, Rajesh sir, brought a very amazing chapter, Wave Optics, on your favorite YouTube channel for the dedicatedly for the CUET, which is the Made JEX. बच्चों यहाँ पर पूरी CUET की टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देके आपके CUET एग्जाम को एकदम बेस्ट बनाने के लिए। और फिजिक्स में हम देख लो पूरी 12th की फिजिक्स करते करते लास्ट टॉपिक तो हमारा बहुत ही प्यारा था, विच इज रे ऑप्टिक्स, एंड नाउ टुडे इज द टाइम फॉर द वेव ऑप्टिक्स। सो आर यू ऑल रेडी? Are you all ready? Just let me know in the comment box, are you all enjoying all these classes or not? Is these classes beneficial for you or not? Just let me know in the comment box, and let's just begin with the wave optics. So not a big deal, not a big deal. I'll first give you a mind map of wave optics and then quickly doing the questions of wave optics, and that will be the over. So now these are the last and the final days of CVT. Exam is going to be approached, and exam is going to be approached. So we have to be ready. We have to do the previous year question. So in the next few classes, I'll be bringing the previous year questions discussion of CVT 2024-23. Okay, ready? तो started. आ जाओ बच्चों। तो पहले आपको वेव ऑप्टिक्स का एक जिस्ट दें, what all the things are there, ठीक है। अ माइंड मैप इज मस्ट। ये माइंड मैप ही तुम्हें एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। क्लियर है? सो वेव ऑप्टिक्स, and in the wave optics, the very first topic is wave front. What is it? We'll first discuss about one term, which is wave front. Okay, then after wave front we will be having what? Yes, Huygens principle. We'll take Huygens principle then. Huygens principle. Okay, and through Huygens principle we are going to understand two things na. One is the reflection and second one is the refraction. Is it correct? Reflection and refraction. Okay, then after Huygens, the important topic, or I'll say the most important topic, which is interference, and interference is used in YDAC, Young's double slit experiment. YDAC, a very important topic is YDAC, interference, and in that interference you have YDAC. Okay bacha, now the next part will be diffraction or not, and then sir, in the diffraction we have a single slit, diffraction. Okay, we'll study that diffraction. And the last part, CBSE में ये पार्ट नहीं था, बट इधर थोड़ा सा इसका डिस्कशन जरूरी है यार, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है पोलराइजेशन, और उसके अंदर भी हम बात करेंगे पोलराइज लाइट की, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, दिस इज व्हाट इज रिटन इन द सिलेबस कि यू हैव टू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स. क्लियर? इजी ही होगा, है ना, इजी ही होगा. लेट्स जस्ट स्टार्ट. वेव फ्रंट, फर्स्ट पार्ट is wave front. Wave front. So sir, what is wave front? तो what I said कि ये definition तुम्हें याद होना चाहिए, और अच्छा definition है, तुम्हें याद आ जाएगा. It is continuous locus of all such particles which are vibrating in
which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase. This is what the wave front is. And now listen, अभी आएगा समझ में. Wave fronts are of 3 types. अब ये तो याद आ जाएगा बहुत इजीली तुम लोगों को. एक तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, याद आ गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट. एक होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और लास्ट होगा प्लेन वेव फ्रंट. अब इसके अंदर भी क्या है, स्फेरिकल के अंदर क्या है, तो सर इसके अंदर सोर्स कैसा है भाई, पॉइंट सोर्स. ठीक है. अब एग्जाम्पल देता हूं, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा कि लेट आई हैव अ पॉइंट सोर्स S. तो ये अपने वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा. कैसे करेगा, स्फेरिकल, तो बना देता हूं ना स्फेयर इसके आसपास. इज इट अ बिग डील जस्ट टू मेक द स्फेयर. ये सर्कल नहीं है, तुम्हें दिखने में सर्कल लग रहा है भले, आई एग्री कि तुम्हें सर्कल लग रहा है, बट दिस इज अ स्फेयर, कंप्लीट 3D. ओके. एंड वन मोर थिंग, देयर इज अ रे, एंड रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. कितना इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया ना मैंने, कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. ये तो लिखना पड़ेगा, बादल बनाना पड़ेगा इसके लिए तो. और वो है कि रेज आर परपेंडिकुलर टू, ये बात को याद रखना. ठीक है, ये बात को याद रखना. फिर तुम्हारे पास रहता है बच्चों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. कौन सा आ जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो सिलेंड्रिकल में ना जो सोर्स होता है ना, वो होता है लाइन सोर्स. सोर्स इज अरे लाइन सोर्स, येलो लाइन सोर्स. दिस इज द, अरे व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ मिनट. हाँ, नाउ इट इज फाइन. line source, and each point behave like a source. Each point they will produce their wave front, and these point will also behave like a source. तो continuous locus, and again these point behaves like a source. These point behave like a source again, and then again a continuous locus, and then again a continuous locus. In this way the cylindrical wave fronts are formed. Then you have plane wave front. So see, when the source is infinity, इसमें सोर्स क्या बोल रहा हूं, सोर्स कहां पर है, एट इंफिनिटी. अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो रेज जो आएगी वो कैसी होगी मुझे बता दो. सर इट विल बी पैरेलल, वी नो दैट, ये तो हमें पता है, इंफिनिटी पे होता है तो रेज पैरेलल आती है, ये बात तो हमें पता है. तो वेव फ्रंट्स जो बनेंगे वो प्लेन बनेंगे, प्लेन. These are the plane wave fronts, and rays are always perpendicular to wave front. कितना important point. Clear. So if you draw तो you'll get the idea कि what I am talking about. देखो दिखाता हूं अब तुम्हारे को यही सारा पॉइंट जो अभी तक का बताया ना. तो यहाँ तो थियरी दिया, इस नोट्स को फॉलो करो, एकदम प्रिसाइज थियरी लिख के लाया हूँ जो कि वेव ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जो भी वेव ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही थियरी इसके अंदर है. तो इसको हम ग्रुप पर शेयर भी करते हैं PDF, आप लोग इसको देखते भी हो, उसको गो थ्रू किया करो. ठीक है, हाइगन्स थियरी तो डेफिनेटली लूंगा ही, पर कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड रे इस पर आ रहा था पहले मैं, वो सारा मैंने समझाया. स्फेरिकल वेव फ्रंट समझाया, स्फेरिकल के बाद सिलेंड्रिकल समझाया, सिलेंड्रिकल के बाद प्लेन समझाया. शेप्स बना रहा था मैं, कुछ शेप्स तुम्हें बता रहा था कि ये रेस क्योंकि पैरेलल आ रही है तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे,
प्लेन बनेंगे, प्लेन आएंगे, प्लेन ही जाएंगे, प्लेन आया, प्लेन गया। यह देखो, यह कितना अच्छा बनाया यार, कितना अच्छा बनाया कि ये मैंने बनाया कॉनकेव, ठीक है। अब सर रे बनाओ एक बार आप, ये लो सर, ये तो कन्वर्ज कर देगा, कर दो, रेस तो कन्वर्ज हो जाएगी। अब वेव फ्रंट तो बनाइए सर इसका, तो जो प्लेन 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 आ गया, टकराने के बाद रिफ्रैक्टेड रेस के कैसे हैं, स्फेरिकल, देखो कैसे हैं, स्फेरिकल, रिफ्रैक्टेड के कैसे हैं, स्फेरिकल। तो ऐसा कोई भी डायग्राम आएगा करेंगे, ये कॉन्वेक्स के लिए ये रिफ्रैक्शन के लिए, ये प्रिज्म के लिए, ये कॉन्वेक्स वो कॉनकेव लेंस के लिए। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो फिर देन देयर कम्स हाइगन्स। हाइगन्स तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट तो यहीं से पढ़ना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट हमें यहीं से पढ़ना पड़ेगा। एज इट इज आता है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज अ फ्रेश सोर्स of new disturbance and send out such spherical wavelets called secondary wavelets। ठीक है, secondary wavelets उसने कर दिया, और फिर कहा कि ये secondary wavelets हर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं। The secondary wavelets spreads in all direction with the velocity of wave, that is velocity of light, that is c। Third and the last point, a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the position and the shape of the next wave front। यही शानदार लाइन है कि ये जो हमारे secondary wavelets बने उनका मैं टेंजेंट खींचूंगा, उनका एक फॉरवर्ड एनवलप बनाऊंगा, तो इट विल गिव यू द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझे? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। इसके बाद हम आएंगे उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब एक तो रिफ्लेक्शन है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया ना, किसने, हाइगन्स ने प्रूव कर दिया अपनी थ्योरी से। कैसे किया था, बस यही बात कि यहां से इस पर रेज आके गिरी, देखना एक बार, ये भी एक रे है और ये भी एक रे है, वेव फ्रंट्स आ रहे, वेव फ्रंट्स आ रहे, वेव फ्रंट्स आके गिरे, तो भाई ये भी तो आएगा एक वेव फ्रंट, ये आ गया। तो इसने सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया सर, लेट से आई, अब इस पॉइंट पी पर आया ये तो, और ये इसका एक पॉइंट और चूज कर लिया मैंने क्यू, तो जितनी देर में क्यू इस पॉइंट पी क्यू आर तक पहुंचेगा, जब तक क्यू आर तक पहुंचेगा उतनी देर में पी आगे पहुंच चुका होगा, आगे मान लो यहां पहुंच चुका होगा, पी एस तक पहुंच चुका होगा। अब मैंने आर और एस का एक टेंजेंट खींच दिया यार, बच्चों समझ में आएगा, आर और एस का एक टेंजेंट खींच दिया, और ऐसे ही रेस चली जाएगी, ये गई, ये गई, और अपने वेव फ्रंट्स लेके चली गई। वेव फ्रंट्स आए थे, वेव फ्रंट्स चले गए। देखो कितना शानदार बना दिया, एंगल आई, और वो कहाँ है, ये रहा, तो ये रहा एंगल आर, एंगल आई दिख रहा है, एंगल आर दिख रहा है, और वेव फ्रंट और ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं भाई। अब इस ट्राइंगल से मैंने इसको प्रूफ कर दिया था कि एंगल आई तो किसके बराबर, एंगल, तो देखो रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया यूजिंग हाइगन्स, ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर दिया यूजिंग हाइगन्स। एंड देन वी मूव्ड टू दी टाइप्स ऑफ सोर्सेस। टाइप्स ऑफ सोर्सेज हमारे पास कौन से हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, याद है? तो कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या कहते थे सर, टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, आर कोहेरेंट कब, जब उनकी हो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, हाँ, 0
और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो हो ही ना या हो तो कांस्टेंट हो, उसे कहेंगे हम कोहेरेंट सोर्स। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्स ही दिखा सकता है, इनकोहेरेंट नहीं। अच्छा, इनकोहेरेंट क्या होगा सर फिर? तो कह दिया ना, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो, अलग फ्रीक्वेंसी है तो, और इवन अलग फेज डिफरेंस है तो, अलग फेज डिफरेंस है तो भी नहीं होगा, उसे बोलेंगे इनकोहेरेंट, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, लैम्डा सेम नहीं, और फेज डिफरेंस भी सेम। हाइगन्स प्रिंसिपल डज नॉट यूज, हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या यूज नहीं किया? रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी किया, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन नहीं किया, पोलराइजेशन नहीं किया। फिर वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, डेफिनेशन लिखा मैंने पहले ही पेज पे। वेव फ्रंट ऑफ द वेव्स हैज अ डायरेक्शन एंड विद द वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन के साथ कैसी होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। Huygens principle of secondary wavelet may be used to find the velocity of light in vacuum, explain the particle behavior, नहीं, find the new position, new position मिलती है, point number 3। next, which of the following property of the light does not support wave theory? wave theory, light obeys laws of, ठीक है, light wave gets polarized, light shows photoelectric, ये भी शो करता है। वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ कौन सा? पोलराइजेशन समझा दिया, डिफ्रैक्शन समझा दिया, क्रॉम्पटन नहीं समझाया। क्रॉम्पटन इफेक्ट कुछ अलग चीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? These type of question, so I have given you these type of question, you have to solve it. Then you have interference of light, then you have the next part which is interference of light. Let me just come to this part, interference। तो कहा कि when two light waves having same frequency, same wavelength, zero और constant phase difference, zero और constant phase difference, सुपरपोजिशन लगता है इसमें भाई, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, producing, superimpose on each other, producing maxima at one point, producing maxima at one point and minima at other, minima at other, उसे बोलेंगे इंटरफेरेंस। प्रोड्यूसिंग मैक्सिमा एट वन पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, redistribution of energy, producing minima at one point and maxima at the other। क्लियर है? तो अब दो इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी यार, कितना आसान इसका फॉर्मूला याद आता है तुम्हारे को, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये तो सुपर पोजिशन करूंगा, y1 क्या लिखूंगा सर? आप लिखो इसको a1 साइन ओमेगा टी, y2 क्या लिखूं सर? आप लिखो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब दोनों को तुमने कर दिया सुपर इम्पोज, मतलब y इज इक्वल टू y1, तो तुम्हारे पास y निकल के क्या आएगा वो सुनना, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है और हमें पता लगता है कि ये जो r आएगा यही तो खेल करेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। कितना देखा देखा फॉर्मूला है ना, कितना फेमस फॉर्मूला है ना, बार बार आता है। फिर इसी को रिप्लेस करके इंटेंसिटी नहीं बना सकता, इसी को रिप्लेस कर दूंगा तो ये तो बन जाएगा I, ये बन जाएगा I1, ये I2, ये 2 रूट I1 I2 cos फाइव। कैसे सर?
तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, पढ़ा है ना इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वहां से मैंने इंटेंसिटी का क्वेश्चन बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। अब मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमा कब बनेगा? तो सर जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तब मैक्सिमा बनेगा, जब मिनिमम होगी तब मिनिमा बनेगा। तो कब होगी मैक्सिमम? सर जब cos फाई 1 होगा। cos फाई 1 कब होता है? सर जब फाई या तो 0 होता है या 2 पाई होता है या 4 पाई होता है या 2n पाई होता है। मिल गया फाई, फेज डिफरेंस 2n पाई। और अगर फेज डिफरेंस ये है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। दे तो दिया कंडीशन अब मैंने तुम्हें, पाथ का भी दे दिया, फेस का भी दे दिया, पर इन दोनों में रिलेशन होता है, पहले भी पढ़ा है, वापस पढ़ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्या? कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब इससे हर केस निकल सकता है हमारा, हर चीज निकल सकती है इससे, है ना? बढ़िया। कंडीशन फॉर मिनिमा, सर कंडीशन ऑफ मिनिमा का ऐसा है कि cos फाई को करो 0, फिर नहीं 0 नहीं -1 सॉरी, फाई होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, टिल 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 2n -1 पाई, है ना? और n की वैल्यू को डिफाइन करता हूं यहां 1 2 3 से शुरू होगी। और पहले वाले केस में इधर n को डिफाइन तो किया ही नहीं तुम लोगों ने, तो 0 1 2 3 0 आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, 0 आएगा। इसमें 0 नहीं आएगा। इसमें तुमने 0 रख दिया तो पाई आ तो रहा है, और 1 रखा तो 1 भी ठीक है, तो 1 से ही शुरू करना है इसको 1 से ही शुरू करना, 2n -1 पाई। और पार्ट डिफरेंस क्या होगा फिर पार्ट डिफरेंस कितना लेंगे? पाई है तो लैम्डा बाय 2, यस 3 लैम्डा बाय 2 टिल 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 2n -1 लैम्डा बाय 2। पाथ एंड फेज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आ गया। इसके बाद जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो याद आ गया अभी फॉर्मूला, आर स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस, फाई भी दे रखा है, देखो ये रहा, सारी वैल्यूज डाल दो, आर स्क्वायर 16 9 2 × 4 × 3 कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है यार? 60, मतलब हाफ मतलब ये गया, सही बोल रहा हूँ? सही, हाफ मतलब ये गया, तो ये 25 + 12 कितना हो गया यार? 37 हुआ है, तो रूट 37 तो अराउंड 6, तो मतलब 6। अरे ठीक है जी, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट देख लो, 2 बीम्स, इंटेंसिटी दिस, द फेज डिफरेंस इज दिस एंड दिस एट पॉइंट बी, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो पहले निकालता हूँ इंटेंसिटी किस पर? ए पॉइंट पर। शुरू करता हूँ, फॉर्मूला I1 है I2 है 4i प्लस 2 रूट i इंटू 4i इंटू कॉस कितना? पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो ये हटाओ, यहाँ से आ गया मेरे पास 5i, आई ए कितना आ गया? 5i। अब क्या निकालूँ? IB, फिर रेशो ले लूँगा, नहीं रेशो नहीं, इनको माइनस चाहिए, माइनस दूंगा मैं इनको, अभी देता हूँ। I 4i प्लस 2 रूट i इंटू 4i इंटू कॉस कितना बोला है? 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होता है यार? कॉस 2 पाई 1 होता है, 1, कॉस 2 पाई 1 होता है भाई। कितना आंसर आ गया? 2 और i दोनों बाहर आ गए, तो ये 4i हो गया फिर तो,
तो ये 9 आई हो गया, तो एक 5 आई एक 9 आई, तो डिफरेंस कितना हुआ 4 आई। 4 आई है क्या? ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए आंसर। तो आई ब्रॉट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यार, जो कि डायरेक्टली इजी और डायरेक्ट आए हुए हैं हमारे, समझो भाई मेरी बात प्लीज। फिर आ गया फ्रिंज विड्थ पे, फिर आ गया फ्रिंज विड्थ पे, बीटा पे। पर बीटा से पहले भी हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा पहले? पोजीशन, पोजीशन ऑफ ब्राइट, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो पहले तो निकाला था हमने पार्ट डिफरेंस, याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा तुम्हें। पार्ट डिफरेंस कितना निकला था हमारा? x छोटा d बाई डी। ध्यान देना कितना जरूरी फॉर्मूला है। अब ब्राइट के लिए इस फॉर्मूले को मैं इक्वल करूंगा, x d बाई डी को इक्वल करूंगा किसके? n लैम्डा के। तो मेरा x का पोजीशन आ गया यार, n लैम्डा d बाई डी। याद आ जाता है हमें फॉर्मूला xn। अब n को रखना एक बार 0, तो x भी 0, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो 0 पे बनता है। n को रखना तो 1, तो x क्या आएगा? लैम्डा d बाई डी। 2 रखना तो हो गया 2 लैम्डा d बाई डी। डन। अच्छा इधर आता हूं और इधर लिखता हूं डार्क, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज में सर आप क्या करो, ये जो है ना आपका एक्स डी बाई डी, ये है ना एक्स डी बाई डी, यस, इसको इक्वल करो इसी के पार्ट डिफरेंस के जो अभी पीछे निकाल के आए, n माइनस वन लैम्डा, सॉरी, हाँ बस n माइनस वन लैम्डा। तो x आएगा 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई डी। अब यहां रख लो 1, यहां तो n 1 से शुरू करोगे ना, मैंने कहा था। तो यहां पे पहला ब्राइट, पहला डार्क, सॉरी फर्स्ट डार्क किधर बनेगा भाई? तो लैम्डा डी बाई डी पे। सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है क्या? नहीं गलत है यार, लैम्डा डी बाई 2d पे। 2 बन रहा है क्या? बन ही नहीं रहा मेरा तो 2, सॉरी 2n माइनस वन बाई 2 बचेगा 2d। अब करेक्ट है, मैं वही देख रहा हूँ गलत क्यों हो रहा है मेरा। चलो आओ एक बार उस पॉइंट पर, कहाँ गया? तुम लोग भी नहीं बता रहे। हाँ नहीं लिखा है 2 भी लिखा है मैंने, वहां इसमें नहीं लिखा था। 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2, करेक्ट है भाई, लिखा है ना जी? सही है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी आ गया, फर्स्ट डार्क आ गया, मतलब सेंट्रल ब्राइट आ गया था फर्स्ट, फिर फर्स्ट डार्क आ गया, फिर फर्स्ट ब्राइट आ गया, फिर ये, और ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट। देखो ये ग्राफ है इंटेंसिटी का ग्राफ, ब्राइट डार्क, ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट, ऑल डार्क आर इक्वली डार्क। तो जो एनर्जी डार्क से चली जाती है वो एनर्जी ब्राइट में शो हो जाती है, इसीलिए पैटर्न दिखता है, इसीलिए ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न दिखता है, और इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये उसका इंटेंसिटी का ग्राफ है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यही तो सारी इसकी बातें, मेन बातें। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अल्फा क्या है? बीटा अपॉन डी। तो बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ, जो कि हमने कैसे निकाली? 2 डार्क को माइनस करके बीटा निकला था ना, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन से। तो कितना लिख रहा था? लैम्डा डी बाई डी। अब तुम तो एंगुलर चाहते हो, तो बीटा बाय कैपिटल डी, तो लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा बाय स्मॉल डी। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? याद रखना पड़ेगा तुम्हें। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ याद रखना पड़ेगा भाई, बहुत शानदार चीज है। फिर क्वेश्चंस पे आ गए, यंग्स डबल स्लिट पे खत्म हो गया इंटरफेरेंस। अब तो लास्ट 2 टॉपिक बचे, एक तो डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन।
तो इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, सेपरेशन हाफ किया मतलब स्मॉल डी को d/2 कर दिया ना, मतलब सॉरी कैपिटल डी को d/2 कर दिया ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स, ओके नो 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 नो, okay, so this is small d/2 and this is 2d, 2 बड़ा इन d. What is the change in beta? तो beta is equals to सर lambda d/d. आपने ये कितना किया, ये मैंने 2d किया है, ये कितना किया, ये मैंने हाफ किया है, हाफ मतलब 2 ऊपर तो 4 गुना हो गया, बीटा डैश इज 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस बीटा, है ऐसा ऑप्शन? यस सर इट इज 4 टाइम्स. ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हमारे एक्सपेक्टेड हैं, आएंगे पक्का बता रहा हूँ. इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज नहीं है, वेरी गुड, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन कॉरस्पॉन्डिंग द फिफ्थ मिनिमा. क्या बोला? इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, ठीक है, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा, पांचवें मिनिमा का पार्ट डिफरेंस. ओहो, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद है क्या मेरे को? ठीक है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद है मुझे, फेज डिफरेंस की टर्म्स में, पता है क्या? पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2π/5. पर ये तो कन्वर्जन का है, चलो ये तो कन्वर्जन का है, हमें बोला है नो इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब फाई का वैल्यू 0, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन कॉरस्पॉन्डिंग द फिफ्थ मिनिमा, पांचवें मिनिमा का पाथ डिफरेंस. ओके, पांचवें मिनिमा का पाथ डिफरेंस. चलो x5 2n-1 लैम्डा d/d रखना, इसमें 5 तो 10 लाइन लैम्डा d/d, यही आंसर है, लाइन लैम्डा d/d, पूरा नहीं लिखा इन्होंने, ये तो यही आंसर है. अरे कितना इजी था, इनिशियल फेज नहीं था तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया ना, फिफ्थ डार्क का. दिक्कत कहाँ है? फिफ्थ मिनिमा का फॉर्मूला यूज कर लिया ना जी. 2 slits in the Young's experiment have the width in the ratio. The ratio of intensity of the maxima and minima in the interference pattern. ये ठीक है, फिर ये याद करना पड़ेगा कि I max अपॉन I min is equals to under root of these width. कौन सी width? Width having the width in the ratio. मान लो d1 अपॉन d2, तो कितना दे रखा है तुम्हें? 1/25. ना ऐसे नहीं. सुनो, तुमको एक बात बताता हूँ, तुम्हें I max बाय I min लाना है ना, तो क्या लिखोगे सर? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर. सही बात है, बहुत सही. और इधर लिखूंगा √I1 माइनस √I2 का, अब कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा? √I1 कॉमन ले लूंगा, इधर से भी ले लूंगा, तो दोनों तरफ से कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा? 1 प्लस रूट में I2/I1 है ना, का होल स्क्वायर. और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस में रूट वही I2/I1 का. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यार? √I1 अपॉन I2 किसके इक्वल हुआ? यही तो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें कि I1 अपॉन I2 किसके इक्वल होता है? सर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये जानते हो. पर विड्थ में उल्टा होता है, विड्थ W2/W1. तो जब ये 2/1 है तो ये 1/this, तो 1/25 लिखा जाएगा, और 1/25 बाहर आएगा तो ये आएगा 1/5 होल स्क्वायर. इधर बनेगा 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर. कितना बना? देखो 5 6,
तो 36/25 अपॉन ये बना 4/5, मतलब 16/25, ये कट 36, तो ये 4, ये 9, 9/4, डी ऑप्शन आंसर। समझ में आएगा? बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये रिलेशनशिप जहां होगा तो वही कर पाएगा फिर इसको, है ना? ये रिलेशनशिप ध्यान होना चाहिए। चलो जी, इसके बाद आ जाता है डिफ्रैक्शन टॉपिक। ये क्वेश्चंस मैंने इसमें तुम लोगों के लिए डाले हैं, प्लीज इसको करना ही करना है। और जब भी हम इस लिक्विड को, मतलब इस पूरे सेटअप को, YDAC को हम किस में डाल देंगे? पानी में डाल देंगे, तो क्या चेंज हो जाएगी? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी कोई पैरामीटर तो है नहीं। तो फ्रिंज विड्थ ये फॉर्मूला होता है, डिक्रीज हो जाएगा तो म्यू आ जाएगा ना डिवाइड में, तो डिवाइड में म्यू आ गया। एंगुलर विड्थ ये फॉर्मूला होता है, लैम्डा चेंज हो जाएगी तो बाय म्यू आ जाएगा, आ गया। पोजीशन, पोजीशन में कहीं पे भी लैम्डा है, हाँ है, तो लैम्डा बाय म्यू, बाकी फॉर्मूला वही है। क्या गजब चीज है, क्या कंपैरेटिव चीज है यार, कितनी शानदार चीज लाया हूं तुम्हारे लिए। फिर डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द एजेस, फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द ओपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर, ज्योमेट्रिकल शेडो में, उसे बोलते हैं ना डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन तब प्रोनाउंस होता है जब लैम्डा है और जो साइज है, तो साइज या तो छोटी हो या बराबर हो, छोटी हो या वेवलेंथ के, नहीं यार ये बड़ी कर दी मैंने, क्या कि लैम्डा या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए साइज के, छोटी नहीं होनी चाहिए वेवलेंथ। मतलब पार्टिकल की, ऑब्स्टिकल की साइज बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, यही मैं यहां लिख रहा हूं वापस। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, साइज एंड वेवलेंथ। ये है कंडीशन, ये कंडीशन प्लीज, द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, लेस भी छोड़ो, ऑलमोस्ट इक्वल होगी तो डिफ्रैक्शन बहुत प्रोनाउंस्ड होगा, अच्छे से दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अगर ऑब्स्टिकल की साइज ज्यादा बड़ी हो गई वेवलेंथ से तो डिफ्रैक्शन ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है जी। फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमारे था सिंगल स्लिट के साथ, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो लास्ट टॉपिक है, आ जाओ, लास्ट टॉपिक है, बस फिर खत्म कर रहे हैं। तो फ्रॉनहोफर ये मानता था कि सोर्स और स्क्रीन दोनों किस पर हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इनफाइनाइट डिस्टेंस होता नहीं है, तो हम अचीव कैसे करते हैं उसको? बाय यूजिंग लेंस, है ना। इनफाइनाइटी को हम कैसे अटेन करते हैं? बाय यूजिंग लेंस। फ्रॉनहोफर बना के दिखाएं, कितना आसान था सर। ये सोर्स था, बीच में लेंस लगाओ, इधर से रे भेजो, पैरेलल देखो, ये आ गई पैरेलल रेज, अरे वाह, अरे वाह जी। इधर आते ही इसको बीच में मिल गया कौन? स्लिट, स्लिट मिल गया, स्क्रीन मिल गई। अब स्लिट से रे गई और यहां वापस लेंस बनाया, लेंस ने उसको कन्वर्ज किया। नहीं तो कन्वर्ज कैसे होती है यार? कन्वर्ज होगी तभी तो पैटर्न मिलेगा। तो सेंट्रल पे बन गया ब्राइट, सेंट्रल BRIGHT, और इधर जब जाएगी तो तब तो कोई पार्ट डिफरेंस होगा फिर, हाँ होगा। ये परपेंडिकुलर, ये वैल्यू A, ये वैल्यू थीटा, ये रहा पार्ट डिफरेंस, ये रहा पॉइंट P, ये Q, PQR, QR इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज QR। QR की वैल्यू याद रखोगे D साइन थीटा, D लिखा है मैंने, ये लिखा है, A लिखा है, A लिखूंगा फिर A साइन थीटा, इट इज A साइन थीटा। अब इस A साइन थीटा को मिनिमा में किसके इक्वल करूंगा? बस वही खेल है, देख लो। फॉर मिनिमा दिस A साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, यही है कमाल। उधर n लैम्डा क्या था? ब्राइट, यहां पर किसके लिए? डार्क। यही उल्टी बात होती है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। n की वैल्यू वही 1 2 3, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट को ले चुका है,
सेंट्रल ब्राइट को ले चुका है, तो डार्क अब 1 से शुरू होगा। और अगर मुझे मैक्सिमा के लिए करना हो, ये तो मिनिमा आ गया क्या, नहीं मिनिमा क्यों लिख रहे हैं यार, ये मैक्सिमा लिखना है ना, और वो भी कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे इसको, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो 2 ये ए साइन थीटा 2n + 1, प्लस कर दो माइनस कर दो, लो माइनस कर दो, 2n - 1 λ/2, सेम है, सेम है, बहुत अच्छे। फिर हमने क्या निकाल लिया, ये क्या है, सेम ही पॉइंट बता रहे हैं कि क्योंकि थीटा स्मॉल्स होते हैं ना यार, तो साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। और क्या बताओ इसमें, लीनियर विड्थ तो समझ ही गए, लीनियर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की होती है 2 λ/d/d, क्या शानदार फॉर्मूला है, 2 λ/d/d, और एंगुलर होगी 2 λ/d ओनली। हाँ ये तो ठीक है यार, डिवाइड बाय कैपिटल डी कर देंगे बस। पर सेकेंडरी मैक्सिमाज कौन से, सेकेंडरी मैक्सिमाज कहां गए, कहां गए, है क्या, या इसके आगे, नहीं, ये रे भाई सेकेंडरी मैक्सिमा, अरे गजब गजब, उसमें लीनियर विड्थ होगी λ/d/d और एंगुलर होगी λ/d, ठीक है, हाफ, एकदम हाफ, सेंट्रल के हाफ, और ये आ गया उनके बीच का डिफरेंस। कंप्लीट हुआ चैप्टर, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। एंड पोलराइजेशन क्या होता है सर, पोलराइजेशन मींस एक यूपीएल लाइट को पीपीएल बनाना। यूपीएल समझ रहे हो, पार्टिकल हर फेज में वाइब्रेट कर रहा है, परपेंडिकुलर भी कर रहा है, अलोंग भी कर रहा है। अब उसमें से कोई सा भी एक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और उसमें हम करते क्या है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बनाते हैं। यहां पर ये डिफरेंस कि फिनोमेना सुपरपोजिशन के कारण है और यहां पर भी सुपरपोजिशन के कारण है, पर यहां डिफरेंट पार्ट से आ रही है या डिफरेंट सोर्स से आ रही है। सारे इक्वली ब्राइट है, इक्वली डार्क है, यहां पर इक्वल नहीं है, सेंट्रल वाला सबसे ब्राइट है, ऑल डार्क का इक्वली डार्क, यहां पर ऐसा नहीं है, डिक्रीज होता है। यहां पर लार्ज इन नंबर होती है बैंड्स, यहां पर नहीं होती क्योंकि धीरे 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 खत्म हो जाती है। ये देखो, पहले परफॉर्म किया एयर में और फिर परफॉर्म किया एक मीडियम में। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट इन द मीडियम लाइज इन द फर्स्ट डार्क इन द एयर, ठीक है। तो मीडियम का 8th x8 क्या लिखूं, 8 λ/d/μd, ये बराबर किसके, 5वें डार्क के, वो भी किसके, एयर वाले के। तो 5वां डार्क मतलब 2n - 1, 5 रखो तो 9, 9 λ/d/d, काटो भाई, क्या चाहिए था, म्यू, म्यू है 8/9, 8/9 तो 0 पॉइंट होता है, फिर क्या गलती हो गई। इट हैज फाउंड दैट द 8th ब्राइट इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर, मतलब इन दोनों को इक्वल करना है, सही लिखा है। फिफ्थ के लिए फॉर्मूला लगेगा 2n - 1 λ/d/2d। अरे यार 2d लगेगा भाई फॉर्मूला 2d लगेगा यार। तो 16/9, 16/9 आया यार, विच इज 1 पॉइंट। अब कौन सा 1 पॉइंट, तो वो भी देखना पड़ेगा मुझे। 1.6 और एक 7, तो 9, 7 टाइम्स 1.7, 1.78, C 1 point। Young's double slit experiment, the fringe is found to be इतना। If the whole apparatus in the water, देख लो वही सेम दे दिया, without disturbing, तो ये try yourself दूंगा, फिर सेम दिया है, सेम दिया है, बीटा बाय म्यू हो जाएगा, बस बीटा बाय म्यू कर दो, 0.4 को डिवाइड कर दो इससे, 0.4 को 4/3 से डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट पे डालो, लो ये 1 हो गया, 10 हो गया, 0.3 मतलब ऑप्शन है, डिक्रीज। तो दीज आर द क्वेश्चंस यार, इजी क्वेश्चंस। तो अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट कैसी है, जिसमें पार्टिकल ऊपर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे भी वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसको हमने किस में से पास किया, एक पोलराइजर में से पास किया, तो इधर से कैसे निकली,
एक वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गया, नहीं हो गया? तो ये है यूपीएल, अनपोलराइज लाइट, और ये बन गई पीपीएल। बस इतना सा ध्यान रखो। ये टॉपिक ज़्यादा है नहीं हमारे, सीबीएसई से भी हट गया और हमारे सीयूईटी से भी हट गया। तो आई हैव गिवन यू द क्वेश्चंस ऑन ऑल दीज टॉपिक, बड़ा मिक्स्ड टॉपिक, ठीक है। इन मिक्स्ड टॉपिक पे भी क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन जब तुमने कर लिए और इसमें PYQs भी डाल दिया, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस भी डाल दिए जो हमारे डायरेक्ट आ सकते हैं उस लेवल के, CUET लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर वेव ऑप्टिक्स आल्सो। तो वेव ऑप्टिक्स खत्म हुआ। अब बच गया तुम्हारे पास छोटे छोटे चैप्टर जो कि ईजी हैं, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। डुअल खुद से करना है, एटम्स खुद से करना है, न्यूक्लियाई करना है और सेमीकंडक्टर करना है। ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर तुम लोगों के किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा PYQs, 2 साल के PYQs करेंगे, एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्लास, एंड दिस विल बी द कंप्लीट कोर्स सीरीज ऑफ फिजिक्स इन CUET। डन। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छा एग्जाम आपका होगा, यही सारी बेस्ट विशेज मेड JEX की तरफ से आप सबको है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, नमस्कार।